Welcome students. We were doing matter in our surroundings. So our next topic is change of state from liquid to gas. That is change of state from liquid to gas, and this process is known as boiling and vaporization. What is boiling? It is the process of conversion of liquid into gas is boiling. What about boiling point? Boiling point is the temperature, that particular temperature at which, जिस पे क्या होता है, the temperature at which liquid starts boiling. Liquid starts boiling. कब? At atmospheric pressure. उसकी atmospheric pressure पे is boiling point. Boiling क्या है? The process of conversion of liquid to gas is boiling, and the temperature at which this boiling starts is boiling point. What about vaporization? Change of state from liquid to gas is boiling and vaporization. What about vaporization? Vaporization is the process of conversion of liquid into vapor. Liquid into vapors. Vapor state is called vaporization. That is called vaporization. उसको हम vaporization बोलेंगे. जब हम किसी लिक्विड को हीट करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, वेपर्स फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं. उस टाइम हम उस चीज को क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन. एंड व्हेन लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, उसको हम बोलेंगे बॉइलिंग. अब एट 100 डिग्री सेल्सियस two stages exist. First is liquid water and second is steam. Now steam कैसे फॉर्म हुई? लिक्विड वाटर. अगर हम लिक्विड वाटर को हीट प्रोवाइड की, स्टीम के पास क्या है, हीट, काफी ज्यादा एनर्जी है लिक्विड वाटर से. सो स्टीम हैज मोर एनर्जी देन बॉइलिंग वाटर. ओके, हायर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, हायर इज इट्स बॉइलिंग पॉइंट. जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा क्या होगा हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट. सो हायर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जितनी ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास ज्यादा होगी, उतना क्या होगा, हायर इज इट्स बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट, उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा. व्हाई? क्योंकि इट नीड्स मोर एनर्जी टू ब्रेक द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है. ओके, नेक्स्ट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. Same we have done latent heat of fusion in change of state from solid to liquid. Same is latent heat of vaporization. What is latent? Latent means hidden. Hidden heat. जब हमने liquid को heat करना start किया और वो vapors में convert होना शुरू हो गया. If we check the temperature, temperature remains the same. Then where does that heat energy go? This heat energy go. Where does it go? To change the state of matter, and second is to overcome the forces of attraction of particles. Okay, so what is latent heat of vaporization? It is the amount of heat energy required to convert 1 mole of liquid into its vapors at atmospheric pressure. जो हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है, at atmospheric pressure at its boiling point, उसके boiling point पे, उसको हम क्या बोलेंगे, latent heat of vaporization. What is latent heat of vaporization? It is the amount of heat energy required to convert 1 mole of liquid into its vapors at atmospheric pressure at its boiling point. Next is, as I have already told that steam has more energy than liquid water. इसीलिए जो burns होते हैं steam से, steam cause more severe burns than liquid water. Why? Because steam has more energy. That's why steam has more energy. तभी वो convert हुई steam में. liquid water को हमने steam provide की, तो उसके पास अब energy है steam के पास. किससे ज्यादा? liquid से ज्यादा. So burns caused by steam are much more severe than liquid water. Okay. Now if we add some impurities in water or in any liquid, its boiling point increases. For example, if we add 60% urea in liquid water, then its boiling point increases. Okay. Next is change of state. Change of state from
gas to liquid या gas into liquid. Change of state from gas into liquid. Gas into liquid, that process is known as condensation. What is condensation? It is the process of changing gas into liquid by cooling. जब हमने उसको क्या किया, on cooling is condensation. And cooling is reverse of boiling. Boil कब हुआ था? जब हमने heat provide की थी. Condensation कब हुआ? When we cool, है ना, जब हमने उसको cool किया. Next is change of state from liquid to solid. Change of state from liquid to solid. Liquid to solid. This process is known as freezing or solidification. What is freezing now? Freezing क्या है हमारे पास? The process of conversion of liquid into solid on cooling is freezing. और जिस टेम्परेचर पे ये freezing अगर हुई उसको क्या बोलेंगे हम? Freezing point. Okay, freezing क्या है? The process of conversion of liquid into solid. जैसे जो impurities थी boiling के केस में, with the addition of impurities boiling point increases. So with the addition of impurities in case of freezing, with the addition of impurities freezing point decreases. Freezing point decreases with the addition of impurities, and it is reverse of addition of impurities. Now freezing is reverse of what? Freezing is reverse of melting. Okay, so this is the change of state from liquid to solid. Next is change of state from solid into liquid or solid into gas or gas into liquid. Solid into gas. इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस का क्या नेम है? Solid into gas. This process is known as sublimation. Now, what is sublimation? It is the changing of what? Changing of solid directly into gas. ये मेल्ट नहीं होता, लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होता, सॉलिड डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाता है? गैस में. द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस, और यू कैन से गैस इनटू सॉलिड. ओके, ऑन हीटिंग इज सब्लिमेशन. अगर हम गैस टू सॉलिड लेके जाएं तो क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ गैस इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग. फिर ऑन कूलिंग हो जाएगा. तो ये क्या है हमारे पास? सब्लिमेशन. तो ये जो सब्लिमेशन है वो काफी जगह पे यूज होता है. इसके एग्जांपल है जैसे अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड एक सॉलिड है. जब हम उसको हीट करते हैं इट डायरेक्टली सब्लाइम्स, मतलब इट डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू वेपर्स. और एंथ्रासीन और कैम्फर. व्हाट इज कैम्फर? कपूर. और यू कैन से नेफ्थलीन बॉल्स. नेफ्थलीन बॉल्स, ये सब क्या है? ये सॉलिड होते हैं. एंड विद हीटिंग दे डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू वेपर्स. तो दिस इज द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड. दीज आर द चेंज ऑफ स्टेट. नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ सब्लिमेशन? सब्लिमेशन कहाँ यूज होता है? एप्लीकेशंस ऑफ सब्लिमेशन. फर्स्ट इज, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई कि हम अमोनियम क्लोराइड को अगर हम हीट करते हैं डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू वेपर्स. तो कोई भी सॉलिड है इट इज यूज्ड टू प्योरीफाई द सॉलिड. सॉलिड को प्योरीफाई करने में कि कौन सा मेथड यूज होता है? सब्लिमेशन. सेकेंड इज ऑन वेरी कोल्ड प्लेसेस. जो बहुत ज्यादा कोल्ड प्लेसेस हैं, तो जो स्नोफॉल होती है वहां पे स्नोफॉल, जो हमारे पास स्नो है उसको मेल्ट नहीं हम करते बल्कि हम उसको सब्लाइम कर देते हैं इनटू वेपर्स. ओके, तो यहाँ और कहाँ पे यूज होती है? जो हमारे पास कोल्ड प्लेसेस होती हैं वहां पे स्नो को सब्लाइम करने में, वेपर्स में कन्वर्ट करने में. तो वो कैसे वेपर्स में कन्वर्ट होता है? हम उसके ऊपर सॉल्ट को स्कैटर कर देते हैं. जैसे हम उस स्नो के ऊपर सॉल्ट को स्कैटर करते हैं, तो मैंने इसमें बताया था आपको इसमें कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है? डिक्रीज. फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होने से क्या होता है कि जो हमारे पास स्नो है वो मेल्ट नहीं होती, इनफैक्ट वो क्या हो जाती है? वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है. इट सब्लाइम्स.
Okay, these are the applications of sublimation. Now, units of temperature. What are the units of temperature? Temperature has 3 units, that is Kelvin, degree Celsius and degree Fahrenheit. If we want to change, if I have given you a value in degree Celsius, then how can you convert it in Kelvin? Degree Celsius plus 273 will give you the value in Kelvin. Now what about degree Celsius? Take 273 in right side. Degree Celsius is Kelvin minus 273. और डिग्री फ़ारेनहाइट ये कहाँ पे यूज होता है? क्लिनिकल थर्मामीटर में, जो डॉक्टर्स यूज करते हैं। वो कौन सा थर्मामीटर यूज करते हैं? फ़ारेनहाइट का। ओके, इसका फॉर्मूला क्या है? 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 विल गिव यू द वैल्यू इन डिग्री फ़ारेनहाइट। हम इसकी एक एक एग्जांपल कर लेते हैं। फर्स्ट इज, अगर मैंने आपको डिग्री सेल्सियस की वैल्यू देती 0 डिग्री सेल्सियस, लेट्स सपोज, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो 0 प्लस 273 इज इक्वल्स टू केल्विन। तो केल्विन की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 273। सेकेंड केस में लेट्स सपोज मैंने आपको केल्विन की वैल्यू दे दी 373, तो डिग्री सेल्सियस को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 373 जो हमने केल्विन की वैल्यू मैंने आपको गिवन दी है वो हमने पुट कर दी, हमारे पास आ गया 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। थर्ड इज डिग्री फ़ारेनहाइट। लेट्स सपोज आई हैव गिवन यू अ वैल्यू ऑफ डिग्री सेल्सियस दैट इज 40 डिग्री सेल्सियस। देन 9/5 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी है? 40 प्लस 32 इज इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट comes out to be 104 degree Fahrenheit. Okay, these are the 3 units of temperature, that is degree Celsius, Kelvin and degree Fahrenheit. Okay. Next topic is effect of change of pressure. Effect of change of pressure. Next topic is effect of change of pressure. First is if we apply pressure, by applying pressure. Pressure apply करने से क्या होता है? Let's suppose हमने एक कंटेनर में गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स लिए हैं जो काफी दूर दूर हैं, राइट? अगर मैंने विद द हेल्प ऑफ पिस्टन इसको कंप्रेस करने की कोशिश की तो क्या होगा? क्योंकि गैसेस कैन कंप्रेस, हम गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं। ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास आ जाएंगे विद बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर। हमने प्रेशर को अप्लाई किया तो ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं दे कम क्लोजर। और मैंने आपको बताया था व्हेन पार्टिकल्स कम क्लोजर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, एंड व्हेन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस देयर स्टेट चेंज, उनकी स्टेट क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। कैसे? बाय अप्लाइंग प्रेशर। सेकेंड इज बाय अप्लाइंग टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को अप्लाई करते हैं तब क्या होगा? बाय अप्लाइंग टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर को कूल डाउन कर दूं तब क्या होगा? व्हाट हैपन? बाय कूलिंग टेम्परेचर अगेन पार्टिकल्स कम क्लोजर, पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। कैसे? बिकॉज इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। नाउ इफ आई एम डिक्रीजिंग द टेम्परेचर इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस। पार्टिकल्स कम क्लोजर, तो इससे क्या होगा? इससे भी स्टेट क्या होगी? चेंज। सो बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर, if we apply both pressure and temperature, they are helpful to liquefy a gas. Both pressure and temperature helps to liquefy a gas. किसी गैस को लिक्विफाई करने में कैसे? बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। कितना लो? देन इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, देन वी कैन इजिली लिक्विफाई अ गैस। तो इससे क्या कंक्लूड होता है? ओके, इससे ये कंक्लूड होता है कि बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? दे आर रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द स्टेट, टू चेंज द
state of matter. For example, take an example of ice. If I heat ice, then it gets converted into liquid. When I heat liquid, it gets converted into vapors. By cooling gas, it gets converted into liquid or solid. So both pressure and temperature, they determine the state of matter. By increasing pressure or decreasing pressure, or by increasing temperature or decreasing temperature, the state of matter changes from solid to liquid, liquid to gas, and vice versa. Okay, these are the effect of change of pressure.